السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری فضائل اعمال سے آپ کو پیش کرو پستی کا واحد علاج۔ ملک ارض و سما جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے۔ مالک ارض و سما جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی مومنوں کے لیے۔ پھر ایک بار سن لیجیے، مالک ارض و سما جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا۔ اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ ترجمہ: اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرتے، پھر نہ پاتے کوئی مددگار۔ اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی مددگار۔ اور مومنوں کی نصرت مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے سوا اس کے رسول کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی عزت و شان و سرفرازی، ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا رسول کے ساتھ مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے، تو سب کچھ ان کا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہوگی تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا۔ ان آیتوں سے یہ پورے واضح طور پر یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ قسم ہے زمانے کے انسان بڑے خسارے میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی پیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی پیمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کو منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا۔ بس معلوم ہے کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمت سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں اور مکمل مسلمان ہیں تو ہماری ہر طرف سے جو ہے نا اللہ کی مدد ہے۔ اور اس روئے زمین پر بادشاہت اور خلافت مومنوں کے لیے، جیسا کہ اس میں دو رائے نہیں۔ آج جو ہم لوگ پستی کی طرف ہیں، بے یار و مددگار، آج ہمارے طرف جو آنکھیں اٹھا کے غیر دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہو گئے۔ کلمہ پڑھ لینا صرف ایمان نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ مکمل ایمان کی دلیل ہے۔ اب ایک مومن ہے تو اللہ کے حکم جو ہے 5 ارکان جو ہے، پہلے توحید یعنی ایمان کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر ہمارے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بھی اللہ کی ذات سے مصلحت ہے اللہ کی۔ اللہ تو چاہے شفا دینا تو 1 منٹ میں کن فیکن کر دے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نمازوں کی پابندی اگر ہم نہیں کر رہے تو نقصان ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تو نقصان ہے، حج نہیں کر رہے تو نقصان میں ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے تو نقصان میں ہے۔
वलसरी इंसान लकी। अब कैसे नुकसान में? भाई नमाज पढ़ने के लिए कहा गया 5 वक्त। नमाज पढ़ रहे तो अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से मदद चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। मिसाल है, आप अपने माँ बाप के कहना माने, माँ बाप आपको खुश आपसे रहेगा तो आपके नाम में जायदाद कर देगा। अगर आप नालायक हैं, आप बात नहीं मानते माँ बाप, आपके वालिद आपके वालदैन कभी भी आपको जो है ना जायदाद नहीं देगा, इसलिए कि हो सकता है ये बर्बाद कर दे। इसी तरह से आप अल्लाह के हुक्म को मान नहीं रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको कहाँ से बादशाह दे दे, कहाँ खिलाफत दे दे। आप तो नुकसान खुद ही कर रहे हैं अपने आप। तो अल्लाह का जब हो जाए तो अल्लाह आपका हो जाएगा। आज पूरी दुनिया की निगाहें मुसलमानों की तरफ, उसकी वजह यही है। आज आँख उठा करके देना देख रहा है, उंगली दिखा रहा है हम लोगों को। और वह हमारा एक ज़माना था आज से 1350-1400 साल कबल। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना देखिए, काल थी, और उनका अखलाक, उनका तरीका हुकूमत चलाने का क्या था। वो अपने लिए क्या वो है ना, वो एक कलील आमदनी जिसमें बने गुजर हो जाए दिन भर। हमारे यहाँ महल होनी चाहिए, हाथी, ऐसी बात नहीं। बस जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक। तो हम लोगों का हाल ये है, हम लोग इंसाफ नहीं कर पा रहे अपने आप को। बाप में नहीं, रिश्तेदार में नहीं, पड़ोसी में नहीं, मामलात में नहीं, चाहे जहाँ पर भी हो, इंसाफ नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं, अगर हम वकील हैं तो मेरा काम है मजलूमों को दफ़ा करना, उसको नहीं मुजरिम को दफ़ा कर रहे हैं, माल मिल रहा है। हम अगर डॉक्टर हैं, गरीबों को जो है ना मशवरा करना चाहिए, देना चाहिए, और वो जो है ना अपने पैसे बनाने के लिए लंबा लंबा टेस्ट लिख देता है और उसके बाद जो है ना नर्सिंग होम में भेजवा देता है, वहाँ से कमीशन हुआ। अगर हम कोई पुलिस डिपार्टमेंट है तो वहाँ गलत लोगों को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं। जो भी जिस डिपार्टमेंट में है, गैरों का छोड़ दीजिए, मुसलमानों का, अगर हम इंसाफ करने वाले हो जाएं तो हमारी हाथ में हुकूमत होगी। घर से आप इंसाफ करें ना, अपने अहबाब से, रिश्तेदार से माल दिया है तो ज़कात को निकालना होगा, और निकाल करके कहाँ देना है? मिस्कीनों को, गरीबों को। यहाँ तक कि आप अपने भाई को भी दे सकते हैं, सगे भाई को, सिर्फ औलाद को नहीं दे सकते और माँ बाप को नहीं दे सकते। ये मसला है। अब बताइए, एक भाई का कारोबार है बहुत बड़ा, बिल्डिंग है बहुत, ज़कात निकाल रहा है, दूर दूर तक शोहरत है, दूर दूर तक उसकी ज़कात की भूखा पड़ा हुआ है बिरादर पड़ोस में। भाई को नहीं पूछता, अरे भाई आप ज़कात बोल के दीजिएगा तो उसके तो गैरत जागेगी ना, लेगा। आप उसको ऐसा हिकमत से दे दीजिए पहले से, लो बाबू कपड़े लत्ते बना लो, ज़रूरत है, फिर देते रहिए। तब वो नहीं निकाल रहे हैं, खैरात भी नहीं दे रहे हैं। आपका रोज़ा का मामला है तो रोज़ा आप नहीं रख रहे हैं, खाली खाने का चक्कर में है। पैसे आ गए तो हज नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि अगर इतने पैसे आ गए कि आप जैसे मिसाल के 5 लाख खर्चा है और 40 दिन आप रहेंगे बाहर, घर में खर्चा रख दीजिए 50,000 रुपया। अगर 5.5 लाख रुपया आपके पास है तो पहली फुर्सत में आप हज कर लीजिए। मगर हम लोग क्या करते हैं, घर मनाना है, बेटी की शादी है, बेटा का शादी है,
लाखों रुपये उसमें खर्च कर रहे हैं और वो काम नहीं, तो नुकसान में कौन हुआ, आप हैं क्या मैं? तो आप तो अल्लाह का काम नहीं कर रहे हैं, मामलात वैसे ही है। तो यही है, पस्ती का वाहिद इलाज यही है कि आप ईमान में दाखिल हो जाए मुकम्मल तौर पर और हर मामलात में इंसाफ करने वाला बने। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी आपको कदम चूमे, आपके हाथ में हर शोबे हाथ में। बड़े बड़े अदारे हैं मुसलमानों के, देख लीजिए हाल, कहाँ कहाँ गिनाया जाए, कहाँ कहाँ बुलाया जाए, मुशाहिदा में है सारी बातें, देख भी रहे हैं। जो जहाँ बैठे हुए सदर सेक्रेटरी बन के सोचते कि हमारा बाप का फैक्ट्री है, मैं जैसे चाहे वैसे कर, है हक नहीं मिल रहा है, हकदार है उसको हक नहीं दिया जाए। किसको हक दिया जाए? अपने कुंबा पर, गरीब देह मिलने जुलने वाले अहबाब रिश्तेदार को, ये हाल है। तो आप अल्लाह का नहीं होंगे तो अल्लाह तो आपको जलील खार कर ही देंगे ना। कहा गया है ना कि अब तुम रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे ऊपर जाबिर जालिम हुकूमत डालें, तो आज हो गया। अल्लाह कैसे बचाएगा, कहाँ से हिफाजत करेगा? तो अल्लाह का आप, फिर आपके अल्लाह के तारीख गवाह है। तो तक क्या होगा, क्या होगा कि छोड़ दिए, बस एक अल्लाह को मान लीजिए, अल्लाह की बात पर चलने वाला बन जाइए, फिर दुनिया में कौन ताकत है कि आपका कुछ बिगाड़ दे? कोई मारने आएगा? अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से उसकी हिफाजत करेगा। आपके अंदर जो है ना डर आना चाहिए, तो अल्लाह के सारी लोग आपसे डरेंगे। और अल्लाह से डरने वाले नहीं बने तो आप एक कीड़ा मकोड़े से भी डरेंगे, एक आम आदमी से भी डरेंगे। हो जाइए। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस गुनहगार के लिए भी दुआ करें, अल्लाह हम लोग को सीधे रास्ते पे